Good morning, friends. Welcome to my channel Concept Card. Today's our topic is census, means Janganana. First, we will study a definition. A definition is given by the United States. It is a total process of collecting, compiling, and publishing demographic, economic, and social data pertaining at a specific time in a country. Census is taken in most countries of the world at regular interval, usually of 10 years. Census means collecting all the information about the peoples and their works, what are they doing, where they live. Compiling this all data are come together and publishing the demographic, economic, and the social data pertaining means at the time of the census are going and collecting people information at a specific time in a country. Census world almost all the countries of the world in regular interval of 10 years. 10 years के यूजुअल इंटरवल्स में सेंसस काउंटिंग कर सकते हैं हम. Drawbacks of census. First, difficult to contact every member to population in given time and the collect a variety of information. हम एक ही टाइम पे सभी पर्सन्स और पीपल्स और फैमिली मेम्बर्स के हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि सब कोई बाहर गया हो और कोई प्रेजेंट ना हो कंट्री में और कहीं भी हो सकता है, इसलिए ये एक इसका ड्रॉबैक है. द फुल रिजल्ट आर यूजुअली नॉट अवेलेबल क्विकली. हमारे भारत देश में बहुत जनगणना जनसंख्या है, इसलिए ये पूरी इन्फॉर्मेशन हम एक पर्टिकुलर टाइम में हम कलेक्ट नहीं कर सकते. कलेक्ट करके इसको पब्लिश भी नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है. इसके लिए हमें बहुत सारे मानस चाहिए होंगे. First regular census in India is held when 1881. First time in the India where the census is occurred in 1881. Interval of census. Usually all the countries of the world have an interval of census 10 years. Last recent census was held in March 2011. Why March 2011? Because the last इन कोरोना टाइम 2021 में होना चाहिए था बट वो हो नहीं सका क्योंकि कोरोना टाइम था, लोग मर रहे थे और इस टाइम पे हम जनगणना नहीं कर सकते, इसलिए 2021 में नहीं हुआ था. अभी एक्सपेक्टली 2031 में हो सकता है क्योंकि 10 ईयर्स का एज गैप है. क्यों 2031 में हो सकता है? कि the census is usually conducted at the end of the first quadrant of the first year in each decade. 10 ईयर के एज गैप में फर्स्ट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट मीन्स 30 तक हो गया था. 31 मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ द फर्स्ट ईयर और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है. फर्स्ट जो भी महीने आते हैं उसमें हो सकता है क्योंकि ये जो 2011 वाला था वो मार्च में हुआ था, मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ था फर्स्ट ईयर के. द लीगल बेसिस ऑफ द सेंसस इज हेल्ड इन द सेंसस एक्ट 1948. ये सेंसस लीगल बेसिस पे द सेंसस एक्ट 1948 के मुताबिक होता है. The census operator means supreme officer. Census operator is known as census commissioner of India. जो सेंसस को ऑपरेट करता है, जिस वो गाइड करता है, उसे सुप्रीम ऑफिसर या सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया कहते हैं. प्राइमरी फंक्शन ऑफ सेंसस. There are too many functions and their functions are give us the more informations like total count of population,
It breaks down into a group and subgroup such as age and sex distribution. The third primary function is also contain social and economic characteristic of people, the condition where they live, how they work, their income, etc. This data helps the above data like their income, sex, age distribution, condition where they live is helps in baseline plannings, action and research in the field of medicine, human economy. Without census data, it is not possible to obtain qualified health, demographic and socio-economic indicator. ये सेंसस के डाटा के बिना हमें पता ही नहीं चलेगा कि डेमोग्राफिक और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, हमारे इंडिया में कैसे लोग रह रहे हैं, उनकी हेल्थ कैसी है. There are two types of census: de facto census, de jure census. First classification of the census, de facto census. Facto, ACT मीन्स एक्चुअल. ये हमें निमोनिक के थ्रू याद रखना होगा. इन दिस सब टाइप द de facto census is actual population present in the census area on a census day. जिस टाइम पे सेंसस काउंटिंग हो रहा है उस टाइम पे उस एरिया में जितने पीपल प्रेजेंट है उनको ही काउंट किया जाएगा, दूसरों को काउंट नहीं किया जाएगा. जैसे मान लीजिए ये एरिया है, इसमें टुडे वो काउंटिंग कर रहे हैं बट उस टाइम पे उस एक घर में से एक पर्सन कॉलेज गया है, एक पर्सन दूसरे शहर में रहता है, तो उनको काउंट नहीं किया जाएगा. क्यों? क्योंकि वो प्रेजेंट सेंसस में वहाँ नहीं प्रेजेंट है, इसलिए इसको ऑल्सो नोन एज एन्यूमरेट पॉपुलेशन. उस टाइम जब सेंसस काउंटिंग हो रहा है वहाँ इतने पीपल प्रेजेंट होने चाहिए, उसको ही हम काउंट करेंगे. जो बाहर गए हैं, जो बाहर रहते हैं, उनको काउंट नहीं करेंगे. इससे हमें ये निमोनिक याद रखना है. फैक्टो, FACTO, फैक्टो मीन्स ACT से एक्चुअल पर्सन्स जो उस टाइम पे प्रेजेंट है उनको ही काउंट करना है. द सेकेंड सब टाइप इज डी जूरे सेंसस. इसका निमोनिक है जूरे, JURE से मीन्स रेसिडेंस, असाइन टू पर्सन अकॉर्डिंग टू देयर यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंट एट अ टाइम ऑफ एन्यूमरेशन. इसका मतलब होता है कि एक घर में चार पर्सन है तो उनमें से चारों का आधार कार्ड में एड्रेस, अभी आधार कार्ड है, पहले आधार कार्ड नहीं था बट रेशन कार्ड और वो सब था, उसमें एक पर्सन, वो सभी पर्सन के एक ही एड्रेस हो तो उन्हें गिना जाता है. सेम एड्रेस होना चाहिए, वो उनका रेसिडेंस सेम होना चाहिए, रेसिडेंस का एड्रेस सेम होना चाहिए, उनको ही गिना जाता है. और उसमें डी फैक्टो जैसा नहीं होता है कि उसमें हम जो बाहर गए हैं उनको नहीं गिन सकते, जो कॉलेज में है उनको नहीं गिन सकते. इसमें ऐसा है कि हमें वो सभी पीपल को गिनना है जिनका रेसिडेंस सेम है, मतलब वो सेम जगह पे रहते हैं, उनको ही गिनना है. इसलिए इसे रेसिडेंट पॉपुलेशन के नाम से भी जाना जाता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. इफ़ यू अंडरस्टैंड देन फॉलो एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.